Good morning. Today I'm teaching you social science for class 8th. As you know that I'm teaching you chapter 2nd of parliamentary forms of government in my previous videos. I explained you about the salary allowances of president, power of the president. First, executive power, judiciary power, legislative power, financial power, emergency power, and material power. In these power, I explain many of the topics to you, like executive power, being the head of the state, he or she make all important official appointments. तो जो भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू प्रेसिडेंट लेते हैं. Judiciary power he appoints the Chief Justice of the Supreme Court and High Court and other judges of the Supreme Court and High Court, and he has a power to grant pardon and remission of punishment or any reduce or remit the sentence of any convict. अगर कोई convict है, कोई particular convict person है, उसका punishment अगर कम करना है या उसको pardon करना है, छोड़ना है, तो it is in the hand of the president only. Okay, so this is the judicial power he or she have. Then legislative power, as you know that in legislative power we have Lok Sabha and Rajya Sabha. So president has the power to dissolve the Lok Sabha, and no bill can become a law without his or her approval. He has the power to issue ordinance with the parliament is not in session. ओके इसको अधिकार होते हैं कि कभी भी लोकसभा को रद्द कर सकते हैं और कोई भी बिल विदाउट परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं किए जाते. ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें, फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें, तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज और हर प्रायर परमिशन. कोई भी मनी बिल पास नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में या इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन ऑफ हिज और हर. ओके, एंड नेक्स्ट हैज द पावर टू सेंशन मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड. इसके पास ये भी पावर होती है कि जो ऑलरेडी रिजर्व फंड गवर्नमेंट के पास है, उस फंड में से अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई फंड सेंशन करना है तो ये भी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. विदाउट साइन प्रेसिडेंट दे विल नॉट गिव टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट. नाउ फिफ्थ, इमरजेंसी पावर. ही और शी can use his or her emergency power under the following conditions. First, in case of financial crisis, अगर कोई देश में फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट हेल्प ले सकता है, कोई निर्णय ले सकता है, कोई नोटिस क्लियर कर सकता है, प्लान पॉलिसी चेंज कर सकते हैं. इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई चेंजेस लाने हैं तो इन दिस केस ऑल्सो प्रेसिडेंट हैव राइट टू चेंज द plan and policies. Or we can say if we talk about the material power, so president have the power, he has a supreme power to command the defense force of India. इंडिया की जो हमारी डिफेंस फोर्स है उनमें कोई प्लान एंड पॉलिसी चेंज करनी है या कोई भी निर्णय लेना है तो इट इज इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट. ही कैन चेंज और दे कैन बी इम्प्लीमेंट all the plan and policies after sanction by the president. Okay, so this much is powers of the president. Now let discuss about the vice president. Okay, so our vice president today is M. Venkaiah Naidu. Fine. The Constitution of India also provides for a vice president of India Republic. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है एंड ही एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. इन केस द प्रेसिडेंट डाई और रिजाइन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months और टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो तब तक काम करेगा प्रेसिडेंट की सीट में जब तक कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ही विल नॉट कम बैक
in his or her own seat. Okay, the time duration is 6 months or more than that till a new president is not elected. जब तक कोई new president elect नहीं हो जाता तब तक vice president उस सीट में बैठ करके वर्कआउट कर सकता है. और in some cases if president is died or resign, okay, so in this condition vice president can take the seat of president. Now read about the qualification and turnover for being elected as the president, vice president of India. कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552 मेंबर्स. टोटली इनमें जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर 552 एंड आउट ऑफ दीज 530 मेंबर्स represent the states and not more than 20 members represents union territories. तो इसमें 530 तो स्टेट के मेंबर्स होते हैं और जो 20 होती हैं वो जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मेंबर्स होते हैं. 20 से ज़्यादा वो मेंबर्स नहीं होने चाहिए. एंड 2 इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सो हमारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी है, उन कम्युनिटी में से भी 2 मिनिस्टर या 2 पीपल लोकसभा में चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्शन का काम प्रेसिडेंट को दिया जाता है, पर्टिकुलर कंट्री प्रेसिडेंट. ओके, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट डिपेंड्स अपॉन देयर पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक सभा फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट इज टोटली डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन. किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन में डिपेंड करता है कि उस स्टेट के से कितने मेंबर्स लोकसभा में अपॉइंट किए जाएंगे. नाउ टर्नओवर. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. लोकसभा में जो मिनिस्टर वर्क करते हैं इनका जो टर्नओवर होता है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 year का होता है.
but it can be dissolved earlier if the ruling party loses its majority. लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में अगर जो मेजॉरिटी पार्टी अगर अपना रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट कोई इलेक्शन होते हैं और तो उस कंडीशन में वो पार्टी लूज कर देती है एंड वी कैन से इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर इफ द रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजॉरिटी. जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी इलेक्शंस के थ्रू जो पार्टी चल रही है लोकसभा में, अगर उस पार्टी के अगेंस्ट कोई दूसरी पार्टी खड़ी होती है तो जितने भी लेजिस्लेटिव पीपल्स या जितने भी लोकसभा के अंदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी. बट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी द प्रेजिडेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. लेकिन जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो इसकी ड्यूरेशन को 1 ईयर तक बढ़ा सकते हैं. ना क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. जो भी लोकसभा के अंदर मेंबर है, मिनिस्टर है, वो कंट्री का सिटीजन होना चाहिए. मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, वो 25 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए. मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट, और उसका नेम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए. ओके, नाउ इलेक्शन. हाउ दे इलेक्ट? द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो लोकसभा में जो पीपल वर्क कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अ लोकसभा and they totally elected, directly elected by the people. They are called members of parliament, or we can say MPs. For this purpose the whole country is divided into constituency. Okay, so our country is divided into constituency. Every adult citizens of India has vote on the basis of secret ballot to elect the candidate of his or her choice from रिस्पेक्टिव एरियाज. तो हर एक पर्टिकुलर सिटीजन को जो कि एक एडल्ट है अबव 18 ईयर हैज़ अ राइट टू डू वोट, टू गिव हिज वोट एंड चूज हिज ओन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हिज ओन एरिया. ओके, तो अपने उस पर्टिकुलर एरिया से वो अपने किसी भी मिनिस्टर को चूज करने का अधिकार होता है. आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर द पार्टी दैट सिक्योर द मैक्सिमम सीट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और वो पार्टी जो इलेक्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट गेट करती है, वो दैट पर्टिकुलर पार्टी इज ऑफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर. The namely elected members of Lok Sabha elect its chairman and vice chairman, known as speaker and the deputy speaker respectively. तो जो newly elected members होते हैं लोकसभा के, उनको अधिकार होता है कि वो अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज करें, जिसको हम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं. तो वाइस चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर एक्ट एज अ स्पीकर. जो वाइस चेयरमैन होता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो एक स्पीकर की तरह काम करता है ऑफ द लोकसभा व्हेन द स्पीकर इज ऑन लीव और रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट. तो जो वाइस चेयरमैन है वो तब काम करता है उस पर्टिकुलर स्पीकर की प्लेस पर जब चेयरमैन, या हम कह सकते हैं जो आपका स्पीकर है, वो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से. ठीक है. तो दिस मच इज अबाउट द लोकसभा. नाउ द राज्यसभा. So first of all we will study the composition. The upper house of the India parliament is known as the Rajya Sabha. अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसको अपर हाउस भी कहते हैं. The total strength of the राज्यसभा is 250 members. इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 250 होते हैं. This strength of राज्यसभा is divided into 2 parts. ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है. First is elected members and second is nominated members. So first of all, at present the total strength of the members of Rajya Sabha is 245. अभी जो present strength है वो 245 है, though its maximum strength is 250 members. इसकी जो maximum limit है वो 250 हो सकती है.
अमंग देम, इनमें से जो 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू